Good morning, students. First of all, I would welcome to all of you on the behalf of Shri Vishwanath Group of Institution. Today, the first topic which we are going to discuss is poetry. I will teach you what the actually poetry is. In your previous classes, you must have studied so many poets, so many poems. But today, I will explain what the actually poetry is. I will explain that particular genre to which we call poetry. हम आपको बताएंगे कि हम साहित्य की उस विधा को, किस विधा को हम पोएट्री कहते हैं, ये आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. We will discuss about the essential features of poetry. So first of all, we should know that what the actually poetry is. The way in which we express our feeling, that is, whether it is laughter, whether it is our tears, we express ourselves. As you know that we as a human being have a lot of feelings or a lot of sentiments, and when it overflows, we express it. When we feel happy, we laugh. When we feel sad, we cry. When we feel anger, we shout. But a poet, neither he cries, nor he shouts, nor he laughs. Whenever he feels something, he writes it down, and in a specific way, in a specific manner, and that is the poetry. That words are not planned, that words are not pre-planned, that are just spontaneous words that utters from his mouth. For example, suppose you have 10 rupees and you have lost it. But since the value of 10 rupees is not much, so you will not feel extreme sad, and you will just ignore it. But suppose you have lost something very precious. How will you react? You will cry. In the same way, you will cry, but a poet will not cry. He will express his grief in words, and that is the poetry. The next thing, when and how did it originate? पोएट्री की ओरिजिन कब हुई, पोएट्री का जन्म कहाँ हुआ है, सबसे पहली पोएट्री किसने लिखी? तो बच्चों, ये कोई निश्चित नहीं है, ऐसा अभी तक कोई कॉन्क्रीट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है जिसमें कि ये कहा जा सके कि पहली बार पोएट्री कब लिखी या पहला पोएट कौन था. लेकिन फिर भी ये माना जाता है, इट इज़ सपोज्ड. If we talk about global perspective, if we talk about Indian perspective, and the both of the perspectives, Maharshi Valmiki is supposed as the first poet ever. It is said that once he was sitting on a river bank along with his disciple Maharshi Bharadwaj, and suddenly he saw a fowler killed a crane bird, and few spontaneous words uttered from his mouth. And later when he realized
that whatever he has uttered, that was a श्लोक। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें अनायास ही उनके मुँह से ये क्या निकल गया, और उसे ही पहला संस्कृत उसे ही पहली जो है पोइट्री कही गई, और दैट इज़ माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती यत क्रौंचना मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह जो है, यही जो है वह संस्कृत का पहला श्लोक था जिसे कि महर्षि वाल्मीकि के मुँह, जो कि महर्षि वाल्मीकि के मुँह से पहली बार निकला। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इट इज़ ओनली अ बिलीफ, it is only a perception, it is not documented, it is not written anywhere, it is just documented। ये सिर्फ एक कहीं सुनी बात है, ऐसा कहीं कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसे, ये तो हो गई कि एक फर्स्ट पोइट्री क्या है, फर्स्ट पोएम किसने लिखी, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की कि फर्स्ट इंग्लिश पोएम किसने लिखी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट श्योर, बट इट इज़ बिलीव, इट इज़ सेड दैट द फर्स्ट इंग्लिश पोएट वॉज कैडमोन इन द 7th century। कैडमोन वॉज द हर्ड्समैन, वो एक एक्चुअली इलिटरेट हर्ड्समैन, वो एक निरक्षर चरवाहा था, और उस निरक्षर चरवाहे को सडनली ही सॉ अ ड्रीम एंड he got some inspiration that he should write some poem, he should sing some poem since he was illiterate. So he was little bit puzzled that how can he write a poem, but he got inspiration that he does not have to write poem, but he has to sing some poems. Since he was in the Vidbais monastery, he was the servant in the Vidbais monastery, and in that monastery he started singing some poems, he started singing some songs that was known as कैडमोन्स हाइम। उसे जो है कैडमोन हाइम के नाम से जाना गया बाद में, और ये जो है वह 7th century की घटना है, 7th century में। लेकिन ये भी कोई बहुत श्योर नहीं है, ये भी इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली किसी ने नहीं कहा कि नहीं कैडमोन ही इंग्लिश का पहला पोएट था, लेकिन ऐसा बिलीफ है, ऐसा माना जाता है। इट इज़ सपोज दैट द कैडमोन वॉज द फर्स्ट एवर इंग्लिश पोएट। दो चीज़ें पता चली, एक तो फर्स्ट एवर पोएट एंड फर्स्ट इंग्लिश पोएट। फर्स्ट पोएट वॉज महर्षि वाल्मीकि in the global perspective and in the Indian perspective, and second poet was Caedmon. One more thing, Caedmon, in the Caedmon's time, the songs, the theme of songs were basically God. जो कविताएं लिखी जाती थी वो भजन के रूप में या हाइम के रूप में, जैसे हम हाइम कहते हैं, हाइम के रूप में लिखी गई वो कविताएं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वह अलग अलग रूपों में वह उसका रूप बदलता गया, उसकी चीज़ें बदलती गई, उसका स्वरूप बदलता गया। बाद में धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया उसका स्वरूप बदलता गया, पोइट्री के नए नई चीज़ें उसमें आने लगी, उसमें नई नई बातें, नए जनर उसमें इन्वेंट किए गए। पोइट्री को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, जैसे कि लिरिक, सोनेट, एपिक, बैलेड, बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अब जाननी है वो है कि अगर हम बात करें कि पोइट्री को कितने भागों में बेसिकली डिवाइड किया जा सकता है, उनकी कैटेगराइज कैसे किया जाए,
तो उनको बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है सब्जेक्टिव पोएट्री। जो पहली चीज़ है, जो पहली कैटेगरी है, वो है सब्जेक्टिव पोएट्री। अब सब्जेक्टिव पोएट्री क्या है? सब्जेक्टिव पोएट्री या पर्सनल पोएट्री वो पोएट्री होती है इन विच पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओन थॉट्स, ही एक्सप्रेसेस हिज ओन फीलिंग। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो थी वह उसकी अपनी खुद की फीलिंग थी। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो कुछ भी उसने कहा वह उसके अपने खुद के विचार थे, उसके अपने खुद के थॉट थे अपने बारे में। और वही चीज़ जो है सब्जेक्टिव या पर्सनल पोएट्री कहलाती है। दूसरा जो अगर हम उसका दूसरा अगर ब्रॉड वे में अगर उसका जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री। अब ऑब्जेक्टिव पोएट्री क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट जो है वह अपनी खुद की फीलिंग्स को, अपने खुद के थॉट्स को, अपने खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जबकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री में वह तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों को वह एक्सप्रेस करता है, जितनी भी चीज़ों को वह जितनी भी चीज़ों के बारे में वह लिखता है वह जो है ऑब्जेक्टिव पोएट्री कहलाती है, वह ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है। तो ये तो थी पोएट्री की बेसिक्स, जिसमें कि हम ग्लोबल और इंडियन दोनों पर्सपेक्टिव में जो है वह हम लोग पोएट्री की एक और चीज़ जो है जो रह गई थी कि पोएट्री वर्ड पोएट्री जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो वर्ड पोएट्री का जन्म जो है वह पोएट्री वर्ड का जन्म जो है वह पोएसिस नामक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है और पोएट्री वर्ड जो है वह पोएसिस से ही लिया गया है। पोएसिस का मतलब होता है टू मेक, और टू क्रिएट, यानी कुछ बनाना या कुछ रचना करना। तो पोएट्री में भी जो क्या होता है, आप कोई चीज़ बनाते हैं या किसी चीज़ की रचना करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो ये तो हो गई बेसिक्स पोएट्री की। अब जो आप अगली चीज़ डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप जस्ट गो थ्रू द गूगल, टाइप देयर W.B. Yeats Lake Isle of Innisfree। जो आज आपके मॉडर्न लिटरेचर बुक की जो पहली पोएम है वो है लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, कंपोज बाय W.B. Yeats।
W.B. का जन्म जो है वह 13 जून 1865 को आयरलैंड में हुआ था। W.B. actually belonged to a very well-known and very renowned family of Ireland. He was Irish, but actually his ancestor migrated to Ireland from England. So he was an Englishman, but since his ancestors migrated to Ireland, he was called Irish poet. He participated in Ireland freedom movement. Later, he became the senator, वो संसद के सदस्य भी हुए, और 1923 में उन्हें लिटरेचर का नोबेल भी मिला W.B. W.B. की शादी जो है वो 1903 में जॉर्ज हाइड लीज के साथ हुई थी। ऑल्दो उनका कुछ लव अफेयर मॉड गॉन के साथ भी था, लेकिन मॉड गॉन के साथ उनकी जो प्रेम कहानी थी वह सफल नहीं हुई, और मॉड गॉन ने भी किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली, और W.B. ने भी जॉर्ज हाइड लीज के साथ 1903 में शादी कर ली। उनकी जो एक पोएम जो आज आपको सबसे पहले पढ़ना है वो है लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री इज जस्ट एन इमेजिनेटिव पोएम। ये उनकी इमेजिनेशन है। W.B. जो है वह एक इमेजिन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। तो आयरलैंड में सिल्गो नामक स्थान पर वह अपनी मदर के साथ वहाँ पे रहते थे। एंड देयर वाज an island called इनिसफ्री। इनिसफ्री नाम का एक टापू था उस सिल्गो नामक स्थान पर। और suddenly once he was walking on the street of London and he was so much fed up of the traffic, he was fed up of materialistic world, that he decided that he will move to Innisfree, where he will live a heavenly life, where he will live a rural life, and he wants to get rid of the rush of London. लंदन की भीड़ भाड़, लंदन की चकाचौंध से वह जो है छुटकारा पाना चाहते थे, और इसीलिए जो है वह लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री नामक स्थान पर जाना चाहते हैं। पोएट कहता है, I will arise and go now and go to Innisfree. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. कहते हैं कि I will arise and go now and go to Innisfree. कहते हैं वो एक दिन ऐसा आएगा। He is saying in a very firm manner, बहुत ही दृढ़ता के साथ वो इस बात को, पूरे विश्वास के साथ वो इस बात को कहते हैं कि एक दिन मैं उठूँगा और go now and go to Innisfree, और Innisfree के लिए निकल पड़ूँगा। कहते हैं निश्चित रूप से एक दिन मैं उठूँगा और Innisfree के लिए निकल पड़ूँगा। and a small cabin built there of clay and wattles made. कहते हैं वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, वहाँ मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, स्मॉल केबिन मतलब छोटी सी झोपड़ी कह सकते हैं या छोटा सा रूम कह सकते हैं। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, किस चीज़ का केबिन बनाएंगे, किस चीज़ की झोपड़ी बनाएंगे? वो बनाएंगे वेटल्स का और क्ले का। क्ले मतलब मिट्टी, वेटल्स मतलब
वेटल्स मतलब होता है जो बांस की जो पतली पतली, जिसको कहते हैं कि सरकंडे, बांस की जो पतली पतली टहनियाँ, टहनी नहीं, जब बांस को आप छीलिए तो जो पतला पतला एक उसके सरकंडे निकलते हैं, उन्हें वेटल्स कहते हैं। कहते हैं कि मैं वहाँ पर बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही फर्मली वो कहते हैं कि मैं एक दिन जो है उठूँगा और निश्चित रूप से मैं इनिस्फ्री को चल पड़ूँगा। वहाँ पे मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊँगा, एक छोटा सा घर बनाऊँगा, और वो घर किस चीज़ का होगा? क्ले एंड वेटल्स का। वो घर जो है क्ले एंड मिट्टी और बांस की पतली पतली सरकंडों का होगा। He is saying that one day he will arise and he will move towards Innisfree. There he will build up, there he will create a hut, a small hut, and the hut will be made of mud and wattles. आगे वो कहते हैं 9 bean rows I will have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. 9 bean rows I will have there. कहते हैं मैं क्या वहाँ पे वो क्या होगा? 9 bean rows, वहाँ पे वह सेम की 9 पंक्तियाँ लगाएंगे। 9 bean rows I will have there. bean मतलब सेम। कहते हैं मैं वहाँ पर सेम उगाऊंगा, 9 पंक्तियाँ जो है सेम की उगाऊंगा। A hive for honey bee and live alone in the bee loud glade. कहते हैं कि हाइव मतलब क्या होता है? हाइव मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। A hive for the honey bee, कहते हैं मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगा? वो कहते हैं कि आई विल अ हाइव फॉर द हनी बी, यानी मधुमक्खियों के लिए वह छत्ता बनाएंगे। मधुमक्खियों के लिए छत्ता कोई नहीं बना सकता, मधुमक्खियों का छत्ता जो है मधुमक्खियाँ स्वयं बनाती हैं। लेकिन वह उस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करेंगे सो दैट कि मधुमक्खियाँ जो है, हनी बी जो है, वो अट्रैक्ट हों और वहाँ पर उस स्थान पर आकर वह अपना हाइव या अपना छत्ता जो है वह बनाएं, उसको वहाँ पर क्रिएट करें। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और कहते हैं मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। किसके साथ? एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, मैं वहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के साथ या मधुमक्खियों के गुंजायमान के साथ जो है मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा।